Hello students, I am Swarndeep Kaur. Welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is coordination compound. The nomenclature of coordination compound is very important topic in the whole chapter. But to do the nomenclature of coordination compounds, we have to know the oxidation state of compounds. So today's our topic is oxidation state of coordination compounds. So let's start it. To explain this topic, I'll take some examples of compounds, coordination compounds, because by taking examples of coordination compounds, it's become easy to learn the oxidation state of coordination compounds, how we can find out it. So first our example is this one, nickel and H2O6. In this compound, first of all, we have to know that what is the charge on the ligand. What is ligand? Ligand which form the bond with the central metal atom. So that is our ligand. इसे क्या कहेंगे हम? ligand कहेंगे, जो कि बॉन्ड बनाता है अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ. तो निकल के साथ में यहाँ पे H2O ने 6 H2O ने बॉन्ड बना रखे हैं. सो द चार्ज ऑफ H2O इज 0. H2O पे कितना चार्ज होता है? 0 होता है. जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, उसके नीचे भी मार्क X. Let us assume it X. Oxidation of nickel is X. Then plus, what is the charge on H2O? That is 0. How many ligands are there? 6. Multiply with 6. And there is no charge is present on it. यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0. x प्लस 0 इक्वल्स टू 0. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0. x equal to 0. That means in this example, the oxidation state of nickel is 0. Next example. Next one is K4 FeCN6. That is our example. In this coordination compound, there is two type of entities are present. First one is ionic entity and second one is coordination entity. जो ये entity है, इसको क्या बोल देंगे? Ionic entity, और इसको क्या बोलेंगे? Coordination entity. So let's start it. इसको क्या मान लेना है? X. And the charge on potassium is +1. How many potassium are present? There is 4. Then plus, then what is the charge on cyanide? That is -1. कितना चार्ज होता है? -1. How many cyanide are present there? 6. Multiply with 6. Then there is no charge present on our coordination entity, then it becomes 0. 4 multiply with 1, then it becomes 4. Then we put our x, and then when we multiply 6 with -1, then it becomes -6 and equal to 0. +4 -6 कितना आ गया? x -2. इससे कैंसिल आउट करेंगे ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना आ गया? माइनस का 2 इक्वल टू 0. x इक्वल टू +2. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज हियर +2. okay, now I'll take next example. Next one is
NiCl2H2O4, ये वाला एग्जाम्पल है अपना। ओके, देखो इसमें वो सेम, इसको क्या मान लेना है, x -1, कितनी है Cl 2, H2O कितनी है, चार्ज कितना है 0, हाउ मेनी H2 आर प्रेजेंट, देयर इज 4, इक्वल टू 0, x -2 प्लस 0 इक्वल टू 0, x -2 0, देन x इक्वल टू प्लस 2, ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो गया ना, तो चार्ज कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर ये भी बता देती हूँ कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, जो जो अपने काम में आने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि चार्ज कितना है। जैसे मैं यहाँ पे -1 ले रही हूँ, इसको 0 ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं, जितने तुम्हारी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं उतनों की हमें रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, हमें बहुत कम चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं हेलोजेंस। And we know that there is the -1 charge is present on all halogens. What is halogens? मैं इसको भी थोड़ा सा बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी क्या है अपने हेलोजेंस। तो कितना चार्ज है, -1। और -1 चार्ज किसके ऊपर होता है, साइनाइड के ऊपर, और किसके ऊपर होता है, आइसोसाइनाइड के ऊपर। किसके ऊपर होता है, आइसोसाइनाइड के ऊपर, और किसके ऊपर हो जाएगा, थायोसाइनाइड के ऊपर। ओके, और -1 चार्ज किसके ऊपर हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पे। ठीक है, ये है कुछ जिनके ऊपर -1 चार्ज के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है। सारे तो हेलोजेंस हो गए, देन साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ये तो सारे साइनाइड के पार्ट हो गए जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्सी हो गया OH, ये तो हमें पता ही है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो ये -1 चार्ज वाले हो गए। -2 जीरो चार्ज किसके ऊपर होगा, देखो जीरो चार्ज उसके ऊपर होगा कि जो एलिमेंट जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बॉन्ड उसने बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरो चार्ज वाले हो जाएंगे अपने पास में H2O, कंप्लीट मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 बॉन्ड उसने बना रखे हैं, NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, CO2, हालांकि यहाँ पे CO2 लिगेंड की तरह बिहेव कर नहीं सकता है ना, तो बहुत कम इसको रीड करते हैं, कई जगह पे दे देते हैं। ये 3 हो गए जो मेन है अपने, वाटर, अमोनिया एंड CO। अब देखो अमोनिया 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बना रखे हैं इसने। अगर ये नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बनाए, NH2 हो जाएगा। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने थे, कितने बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। अगर ये कितने बॉन्ड बना ले, एक ही बना ले, कितने कम रह गए बॉन्ड, 2 कम रह गए ना, 2 कम रह गए तो कितना चार्ज आ जाएगा, -2। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है और बनाया एक भी नहीं, तीनों ही फ्री पड़े हैं, तो कितना हो गया, -3 चार्ज। ये ध्यान रखना, यानी कि जितने बॉन्ड बना सकता है उससे कम बॉन्ड बना रखे हैं तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज उतना ही आता रहेगा। जैसे कि जितने कम बनाता जाएगा उतना ही माइनस में चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे H2 है, H2O में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, और अगर एक ही बॉन्ड बनाया सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में तो कितना चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। सेम यहाँ पर NH3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों ही बना रखे हैं तो 0 चार्ज। अगर 2 बना रखे हैं, एक बॉन्ड कम रह गया, एक कम रह गया तो -1, 2 कम रह गए तो -2, 3 कम रह गए तो -3 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट -2 वाला, -1 हो गया, 0 हो गया, -2 देखो, -2 चार्ज किस किस का हो सकता है, आप इसको चाहो तो नोट कर लो, जो अपने काम आने वाले हैं सिर्फ वही। कौन सा है, ऑक्जेलेटो, कौन सा है, ऑक्जेलेटो, है ना। इसके अलावा 0 वाला जो अपन ज्यादा इसमें काम में आता है वो होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, इसको लिखते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन। मैं पूरा नेम भी लिख देती हूँ, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, फॉर्मूला NH2 CH2 CH2 NH2, एथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, ये भी अपन बहुत ज्यादा इसमें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर यूज के अंदर लेते हैं।
So there is three type of charges are present, three types of ligands on the behalf of charge is present, that is zero charged ligands, that is H2O, ammonia, carbon monoxide and ethylene diamine, and -1 charge containing ligands are cyanide, isocyanide, hydroxy and thiocyanide, isothiocyanide, and -2 charge is oxalato. These are some ligands which are required when we do nomenclature and find out the oxidation state of coordination compounds. इतने ही हमें करने की जरूरत है, उससे ज्यादा हमें करने की नीड नहीं है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही चार्ज अपने काम में आने वाले हैं इसके बाद में. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट आई विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल. COCl2 ethylene diamine 2. That is our next coordination compound. +1 +1. ओके, अब इस पे ध्यान दीजिए. देखिए, इसको तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको क्या एज्यूम कर लिया, X. अब प्लस, देखो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1. हेलोजन का है कितने हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से. एथिलीन डाइयामीन अभी अभी मैंने बताया था कितना चार्ज है उसके ऊपर, 0 प्लस लगा के 0, कितने हैं, 2. अब देखो इसके आगे इसमें चार्ज है ना, उसमें चार्ज नहीं था तो 0 कर दिया. यहाँ पे कितने, +1 चार्ज, तो इस पर +1 चार्ज को यहाँ पे हमने रख दिया. ओके, अब देखो x -2 + 0 = +1. x +1 और ये -2 इधर गया तो किसका हो गया, +2. देन x = +3. So our oxidation state for cobalt is +3. That means cobalt have +3 oxidation state. Okay. Now next example. Cr chromium CN2 ethylene diamine 2 and K2. Okay, now look at here. -1. देखिए जो इसमें पहले जो होता है ना वो प्लस का होता है, और बाद में जो होगा, पहले जो होता है वो हमेशा प्लस यानी कि कैटाइन, एंड आफ्टर सेकंड वन इज ऑलवेज एनाइन. सेकंड वाला हमेशा क्या होता है, एक एनाइन होता है, ऋणाइन होता है. ओके, तो कितना होता है इसके ऊपर चार्ज, +1 मल्टीप्लाई विद 2. ओके, वी एज्यूम इट X. There is -1 charge on cyanide, multiply it with 2, then charge on ethylene diamine is 0, multiply it with 2, and there is no charge on our coordination entity, then we put 0. Okay, +2 plus X -2 = 0. +2 and -2 we can cancel out it with each other. X = 0. That means there is oxidation state on chromium is 0. कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी क्रोमियम के ऊपर, 0. देखो पहले नॉर्मली अपने ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ही लगे होंगे, है ना. अगर आपको ये भी याद ना रहे तो अपने पास में जो एंटाइटी से कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो पहले हमेशा होगा ना, वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा और एस ब्लॉक का होगा. एस ब्लॉक का मैक्सिमम चांस है कि कौन सा होगा, कि फर्स्ट सीरीज वाला होगा जिसके ऊपर +1 चार्ज होती है. जैसे लिथियम ये होता नहीं है वैसे, है ना. सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है. सेकंड वाला +2 वाला, यहां से मैक्सिमम अपने पास में कैल्शियम आता है ना. है ना, तो अपने पास में क्या आता है ज्यादातर, या तो पोटासियम दिया होता है और या फिर कैल्शियम दिया होता है. अगर कैल्शियम दिया तो +2 और पोटासियम दिया तो +1 चार्ज है. मैक्सिमम यही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता. मैं अभी एक एग्जांपल लूंगी जिसमें वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही लेता है आयरन के साथ में, फेरीफेरोसाइनाइड, है ना. फेरीफेरोसाइनाइड का मैं अभी आगे जाके एग्जांपल लूंगी, जब थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस हो जाए, हमें अच्छे से ये आ जाए कि हमने ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ
नेक्स्ट एग्जाम्पल। और बाद में देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाद में जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव एंटाइटी होगी और ज्यादातर चांस है उसमें या तो सल्फेट होगा -2 चार्ज के साथ में होगा या फिर SO3 होगा डेट इज ऑल्सो -2 विद -2 चार्ज, और इसके अलावा अपने पास में फॉस्फेट हो सकता है विद -3 चार्ज, या फिर इसके अलावा वही अपने हेलोजेंस हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी कि पहले क्या है बाद में क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहले वाला नॉर्मली जो एंटाइटी से पहले है ना तो वो नॉर्मली +1 चार्ज के साथ ही आता है, और बाद वाला मैक्सिमम चांस है या तो हेलोजन होगा तो -1 चार्ज, और अगर वहां पे सल्फेट या सल्फाइट है तो वो -2 चार्ज के साथ में आएगा। नेक्स्ट वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम Pt Br Cl N2 and NH3, this one, ओके। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कितना मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वाला नॉर्मली कितने चार्ज के साथ आएगा, +1 चार्ज के साथ, तो ये हो गया +1। इसको हमने हमेशा क्या मानना है, x, जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है ना, सेंट्रल मेटल एटम की, उसे क्या मान लेना है +x। देन ब्रोमीन एक हेलोजन है -1, देन ऑल्सो क्लोरीन इज ऑल्सो अ हेलोजन दैट इज -1 चार्ज। नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि NH3 प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर NH2 है तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो -1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो कितना हो गया, -2 हो गया। अगर तीनों हाइड्रोजन चले गए तो कितना हो गया, -3 चार्ज उसके ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 0 इक्वल्स टू 0। यही हो गया। अमोनिया के ऊपर तो पूरे का पूरा ही आ गया ना, NH3 3 बॉन्ड बनाने थे, तीनों बना लिए। नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3, और कितने हैं नाइट्रोजन, देयर इज 2 नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, देन -3। नेक्स्ट देखो, +1 + x -2 -3 2 जा 6, -6 इक्वल्स टू 0। +1 + x -2 and -6 -8 equals to 0 and x -7 equal to 0, x equals to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये शो करेगा। अगर कंपाउंड ये है तो अपने पास में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ फेरोसाइनाइड का। देखो Fe4 FeCN6 और ये हो गया ऑल थ्राइस। इस तरह का अगर हमें कंपाउंड दिया हुआ है तो ठीक है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, तो इसमें हमने क्या करना है कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इसका ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको तो यहाँ रख लो, और जो इसका है उसको कहाँ रख लो, यहाँ रख लो। अब पहले वाला हमेशा प्लस होता है और बाद वाला हमेशा माइनस होता है। ओके, तो इसकी तो Fe की, इस Fe की तो होगी +3, ठीक है। अब इतने की अपन अलग कर लेंगे, इसके दो तरीके हैं पर मुझे ज्यादा बढ़िया ये वाला लगता है, इससे ज्यादा इजिली निकल के आ जाता है। तो देखो अब इसकी तो हमने कर दी ना, इसको तो अलग कर दिया, इसकी कितनी कर दी, +3 कर दी, इसको -4 मान लिया एक को, यानी कि अपने पास में FeCN6 और -4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको क्या मान लिया x, ये हो गया -6 और ये हो गया इक्वल लगा दिया, और ये क्या हो गया -4, क्योंकि -1 × 6 -6 ही होती है, तो x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 + 6, x इक्वल्स टू +2। तो यानी कि इसकी तो होगी +2 और इसकी होगी +3। समझ में आई बात भाई, इसकी +3 और इसकी
+2 हमने क्या करना है कि जो इसके नीचे लगा हुआ है उसको तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेंगे, जो इसमें लगा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ही हो गया क्योंकि उसके पास में कोई लिगैंड वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो जो उसका चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हमें उसके अलावा उसके साथ में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। तो इसलिए इसका तो हो गया +3 फेरिक बन गया, और इसकी कितनी होगी +2 फेरो बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमने -4 कर लिया। इसके अलावा अगर आप -4 ना करके इसको लंबा लेके चलो तो 1 के ऊपर -4 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 3 4 जा कितने हो गए 12 हो गए, इधर भी 3 4 जा कितने हो गए 12 हो गए। उस तरह से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। इससे बेटर रहता है कि आप एक एक को लेके चलो, है ना। इसके वाला तो इसके ऊपर कर दिया और इसके वाला इसके ऊपर कर दिया, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया। ओके, so that is oxidation state. So students, next class I'll take the topic nomenclature of coordination compounds, in which we use the oxidation state also. Okay, so thank you, bye bye.